2024 slot वन का DLR का क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कैसे बनता है। तो ये क्वेश्चन है कि दो स्टूडेंट्स हैं, अम्मे और A और R are the only candidate in a election for the position of class representative. Students will vote based on the intensity level of A and R camping and the type of camping they run. Each camping is said to have a level of 1 if it is a stayed campaign and level of 2 if it's a vigorous campaign. Campaigns can be of two types. They are either focused on issues or attacking the other candidate. If Amya and Ramya both run campaigns focuses on issues, then the percentage voting in the election will be 20 times the sum of level of campaign of the two students. For example, if Amya and Ramya both run vigorous campaign, then 20 into 2 plus 2%, that is 80% of students will vote the election. Among voting students, the percentage of votes for each candidate will be proportional to the level of their campaign. For example, if Amya runs a steady level 1 campaign while Ramya runs a vigor campaign, then Amya will receive 1 by 3 votes cast and Ramya will receive 2 by 3 votes. The above mentioned percentage change as follows if at least one of the students runs a campaign at their opponent. If Amya runs a campaign attacking Ramya, the focusing 10% student who vote for Amya will vote for Amya and another 10% who would have otherwise vote for Amya will not. तो देखो इसमें बेसिकली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इस टाइप के पैसेजेस में सबसे पहले जो चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए वो ये कि अपन एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ें। तो देखो बेसिक सी बात है कि दो स्टूडेंट्स है A और R, यही सिर्फ कैंडिडेट हैं इलेक्शन के फॉर द पोजीशन ऑफ CR। स्टूडेंट्स किस बेसिस पे वोट करेंगे? इंटेंसिटी लेवल पे वोट करेंगे ऑफ A and R कैंपिंग एंड द टाइप ऑफ कैंपिंग दे रन। कैंपिंग की इंटेंसिटी क्या है और उसका टाइप क्या है। हर एक कैंपिंग इज सेट टू हैव अ लेवल ऑफ 1 इफ़ इट इज़ अ स्टाइड कैंपिंग, है ना। तो क्या है, लेवल 1 होगी अगर स्टाइड कैंपेन है, और लेवल 2 होगी अगर विगरस है। पहली बात तो ये होगी, तो ये चीज़ तो याद रहती है। कैंपेन दो टाइप की होती है, या तो वो इशू पे फोकस करेगी या दूसरे कैंडिडेट को अटैक करेगी। अब अगर दोनों ए और आर दोनों इश्यूज़ पे फोकस करते हैं तो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वोटिंग इन द इलेक्शन विल बी 20 टाइम्स द सम ऑफ द लेवल ऑफ द कैंपेन। तो 20 और सम ऑफ लेवल क्या है 2 + 2, तो 80%। अमंग वोटिंग स्टूडेंट्स द परसेंटेज ऑफ वोट फॉर ईच कैंडिडेट विल बी प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ देयर कैंपेन। अगर अम्मिया जो है वो लेवल 1 कैंपेन लेती है और आर जो है वो लेवल 2 लेती है, तो ए विल रिसीव 1 by 3 votes and R will receive 2 by 3 votes. The above mentioned percentage change as follows if at least one of them runs a campaign. तो ये जो above mentioned percentage है ये चेंज हो जाएगा कब? अगर इनमें से कोई एक या दोनों अटैक करें ओपोनेंट को। तो अगर हम ए ने एक कैंपेन रन की अटैकिंग आर और आर ने एक कैंपेन रन की जिसमें फोकस कर रही है वो इश्यूज़ पे, तो क्या होगा, 10% ऑफ स्टूडेंट जो कि अदरवाइज वोटेड फॉर ए will vote for R, and another 10% who have otherwise voted for A
will not vote at all. If R runs a campaign attacking A and A runs a campaign focusing on issue, 20% students would have otherwise voted for R will vote for A, and another 5% who have otherwise voted for R will not vote at all. If both run campaigns attacking on each other, then 10% of students who have otherwise voted for them, had they run the campaign focusing on issues, no, will not vote at all. So if both of them run styled campaigns attacking the other, then what percentage of students will vote in the election? तो अगर दोनों ने स्टाइड कैंपिंग मतलब लेवल 1 कैंपिंग करी अटैकिंग दी अदर, देन व्हाट परसेंटेज विल वोट इन द इलेक्शन? तो सबसे पहली बात है कि इनने स्टाइड कैंपिंग की है तो 1+1, तो 40% बच्चे जो हैं ये इलेक्शन में वोट करेंगे। अब दोनों ने स्टाइड लेवल ऑफ कैंपिंग करी है ना? तो 36 लोग जो हैं, इसका आंसर 36% है। क्योंकि अगर दोनों ने पहले तो एक तो 40% बच्चे वोट कर रहे हैं, दूसरी बात क्या है कि इफ़ बोथ रन कैंपिंग अटैकिंग अदर देन 10% हुआ अदरवाइज वोटेड विल नॉट वोट। तो इसका 10% क्या होता है? 4, उसको माइनस कर दो तो 36% आ रहा है। तो इसका तो 36% आएगा। देख लेते हैं। देखो 36% आंसर है, मिल गए 3 नंबर इतनी आसानी से। तो जो सेट आपको लग रहा है कि लैंग्वेज में बहुत कठिन है, बहुत आसान सेट है। लोग अटेम्प्ट ही नहीं करते। लोगों को क्या लगता है कि हम बैठे रहें, कुछ काम ना करना पड़े और हमारा सब कुछ निकलता भी जाए, सब कुछ अच्छा होता भी है। देखो, बिना कुछ करे भी कई बार चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, लेकिन इसको बोलते हैं लक। लेकिन लक भी उसका साथ देता है जो मेहनत करता है। तो आप मेहनत से पीछे मत भागो। कई बार मेहनत से चीज़ें होंगी, कई बार नहीं होंगी, और कई बार बिना मेहनत के भी हो जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ही मत करो, और जो मेहनत कर रहा है वो पागल है। मेहनत हर किसी को करनी पड़ती है। अटेम्प्ट नहीं करोगे कुछ नहीं बनेगा। मैं भी जब ये सेट पढ़ रहा था आपको, मैं पहली बार अटेम्प्ट कर रहा हूँ। अब खुशी मिली, मैं पहली बार अटेम्प्ट कर रहा हूँ, और अभी आपको समझाते समझाते मैंने सीखा। मेरे को भी लग रहा था स्टार्टिंग में कि ये सेट नहीं बनेगा। क्या करता? वीडियो पॉज करता, सोल्यूशन समझता, आपको समझाता, खुद को समझाता। पर अभी मेरे को बन गया है सेट, इसलिए मैं अभी वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बनाने में आपका फ़ायदा है, लेकिन मेरा ज़्यादा फ़ायदा है। What is the minimum percentage of students who will vote in this election? Minimum percentage of students who will vote in this election. तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल वोट इन दिस इलेक्शन, तो ऐसा होगा कि अगर दोनों स्टाइड लेवल ऑफ कैंपिंग लेंगे तो वैसे 40% बच्चे वोट करेंगे। अब if A runs a camping attacking R and R runs a camping focusing on issues, ये जो है ना कि if R runs a camping attacking A and A runs a camping focusing on issues, then 20% will vote for Ramya and
तो अगर 10% का देखें तो जब 36 का 10, ए रन अ कैंपिंग 36, तो अगर ए ने कैंपिंग ली, अटैक की आर को, मतलब आर को 24 और ए को 12 मिलेंगे, देन 10% ऑफ स्टूडेंट्स अदरवाइज विल वोट फॉर आर। तो मतलब इसने इसके यहाँ कितने वोट किए? आई डोंट नो, 36% ही मेरे हिसाब से होना चाहिए इसका, 36% ही है, तो इससे कम नहीं हो सकता ना। अगर इसका अपन एक्सप्लेनेशन भी देखें तो 36% क्यों बोला कि भाई स्टाइड में 40% है, विगरस करोगे तो 30% आएगा, और ए और आर, और मिनिमम परसेंट जो वोट इन द इलेक्शन व्हेन बोथ ऑफ द कैंपेन्स आर स्टाइड एंड अटैकिंग, तो टोटल वोट 40% होंगे। ए रिसीव करेगी 20%, वेयर एज बी रिसीव करेगी 20%। सिंस दोनों अटैक कर रहे हैं 10% ऑफ एंड आर डोंट रन अप, तो देयरफॉर ईच विल रिसीव 18%, तो 36% ही आंसर है इसका। मैं भी 36 पे मार्क करता हूँ या छोड़ देता हूँ। तो ये हो गया। इफ ए रन्स अ कैंपिंग फोकसिंग ऑन इश्यूज, देन व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट दैट शी कैन गेट। तो अगर ए ने ऐसी कैंपेन रन की जो कि सिर्फ इश्यूज़ को फोकस करती है ना, अगर ए ने ऐसी कैंपेन रन की जो कि फोकस करती है इश्यूज़ को, है ना, ये कह रहा है ना, ए ने ऐसी कैंपेन रन की जो कि फोकस करती है इशू को, तो ए ने ऐसी कैंपेन रन की जो कि इशू को फोकस, मैक्सिमम परसेंट जो वोट जो उसको मिल सकते हैं। तो अगर ए इशू पे फोकस करेगी तो मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं उसको? तो मैक्सिमम तब मिलेंगे जब वो बिगेस्ट कैंपेन रन करेंगे दोनों। तो 80% लोग वोट कर रहे हैं। अब ए, है ना, अब अमंग द परसेंटेज वोट फॉर कैंडिडेट्स प्रोपोर्शन टू लेवल ऑफ कैंपिंग, और मान लो वो लेवल 1 कैंपिंग कर रही है आर, और ए कर रही है लेवल 2 कैंपिंग, तो इसमें से 80 से 80/3 वोट, 80/3 वोट मिलेंगे आर को, और 160/3% वोट मिलेंगे ए को। ये सबसे पहली बात है, ठीक है। तो इसके बाद आता है कि, है ना, अब इफ़ ए रन्स अ कैंपिंग अटैकिंग आर, हाँ, तो इफ़ आर रन्स अ कैंपिंग अटैकिंग ए एंड ए रन्स अ कैंपिंग फोकसिंग ऑन इशू, 20% ऑफ whatever is voted for R will vote for A। तो 80/3 का 20/100 जो है ये वोट करेंगे ए के लिए, और अनदर 5% जो कि आर के लिए वोट करते वो वोट ही नहीं करेंगे। तो अपन को तो यहाँ तक 5 1 5 और 16/3% और वोट करेंगे, तो ये कितना हो गया, 176/3% वोट करेगा। 3 5 15, 3 8 24, और 60, 3 5 15 26 3 8 24 20, 3 6 18, 58.66 होना चाहिए। तो ये तो आ नहीं रहा है। इफ़ आर रन अ कैंपेन फोकसिंग ऑन इश्यूज, तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट उसको कितने मिल सकते हैं?
आ, कुछ गलत है क्या? अगर आर ऐसी कैंपेन रन करे जो कि सिर्फ इश्यूज पे फोकस करे, तो दोनों भी अगर विगरस कैंपेन रन करें, दोनों अगर विगरस कैंपेन रन करते हैं तो 80% स्टूडेंट्स ही वोट करेंगे, उससे ज़्यादा तो करेंगे नहीं। अब द परसेंटेज ऑफ वोट फॉर ईच कैंडिडेट विल बी प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ कैंपेन, वो ठीक है। तो एक तो दोनों ने लेवल, अच्छा हाँ एक चीज़ गलती होगी, दोनों ने लेवल 2 कैंपेन करी है, तो दोनों को 40-40% मिलेगा, है ना। मैंने यहाँ क्या किया, ऊपर तो कैलकुलेट किया पर नीचे कैलकुलेट नहीं किया, हाँ ये गलती हो गई। तो इफ़ आर रन्स अ कैंपिंग अटैकिंग ए एंड ए रन्स अ कैंपिंग फोकसिंग ऑन इशूज़, तो आर ने कैंपिंग रन की एक है और एक ने सोची 20% वोटेड फॉर आर विल वोट फॉर ए, तो मतलब 40 × 20/100, 8 स्टूडेंट्स, 48 आंसर, 48 मिल गया नंबर। और फिर लोग बोलते हैं कैट कठिन है, कैट कठिन नहीं है, डीएलआर में बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। कैट वाला पेपर है कि जिसने टेंशन से दिया, जिसने डू और डाई वाली उससे दिया वो गया, आराम से देना। आप जितना आराम से दोगे, बेफिक्र होकर दोगे, उतना अच्छा जाएगा। और जहाँ आपने फिक्र की कि इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं बहुत बच्चे सिर्फ इसलिए हार जाते हैं प्रैक्टिस के बारे नहीं, इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। कोई टेंशन नहीं रखना, आराम से चलो। आराम से चलने में एक बात है कि मे बी सक्सेसफुल ना हो पर जीवन शानदार होगा। इफ़ आर रन्स अ कैंपेन अटैकिंग ए, देन व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ व्हाट शी इज़ गारंटीड टू गेट। तो मान लो आर ने एक कैंपेन की, तो अपन मान लेते हैं कि दोनों की कैंपेन लेवल 1 है, तो सिर्फ 40% बच्चे ही वोट दे रहे हैं, है ना। अब इसमें कह रहे हैं कि आर ने कैंपेन रन की अटैकिंग ए, है ना, आर ने कैंपेन रन की अटैकिंग ए, तो अगर आर ने कैंपिंग अटैकिंग ए की तो 20% स्टूडेंट्स, तो देखो दोनों को 20-20% मिले। अब 20% ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब 4 स्टूडेंट यहाँ चले गए, और अनदर 5%, मतलब 2 5 10 एक वोट नहीं करेगा। वैसे ही 4 चलेगा, 16-15 बच्चे बस करेंगे वोट, 15 आंसर, मिल गया नंबर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल वोटिंग मार्जिन विथ विच वन ऑफ द कैंडिडेट कैन। अब आप देखिए, मैं आज ही आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मेरा सेट था पिछली बार और मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाया था। क्यों? दिमाग ही नहीं चलता, और मैं आज आपके सामने बढ़िया कर रहा हूँ। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वोटिंग मार्जिन विथ विच वन ऑफ द कैंडिडेट कैन विन। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉसिबल वोटिंग मार्जिन क्या है विथ विच वन ऑफ द कैंडिडेट कैन विन। वोटिंग मार्जिन, मैक्सिमम पॉसिबल वोटिंग मार्जिन कितना हो सकता है विथ विच एक कैंडिडेट जीत सकता है। तो बहुत आसान है कि भाई मैक्सिमम पॉसिबल वोटिंग मार्जिन क्या होगा। आप दोनों लेवल 2 की कैंपेन करो, 80% बच्चे वोट करें उस कैंपेन में, ठीक है। और उसके बाद क्या हो कि आप पे ये 10% वाला कर दो या आर वाला कर दो, तो आप दोनों को 40-40 मिले। और फिर क्या हो कि आर ने अटैक किया ए पे, 20% ऑफ स्टूडेंट्स मतलब 8 लोग इसमें चले गए, 8 लोग इसमें चले गए, और यहाँ बचे 32, और जो अनदर 5% होते
4 5 जा 22, वो और चले गए, वो वोट ही नहीं किए, तो 30 बचे और यहाँ 48, तो 18 एक मार्जिन बच रहा है। अब इसी चीज़ को लेके ऊपर मैं कर दूँ कि आपके पास 40 थे और ए ने अटैक कर दिया आर पे, है ना। तो 10% हुआ, अदरवाइज वोटेड फॉर ए विल वोट फॉर आर। तो 4 लोग वोट करेंगे आर के लिए, मतलब 44 हो गया, इसका 36 हो गया। और अनदर 10% जो कि वोट करते ए के लिए, तो और 4 लोग फिर वो वोट ही नहीं करेंगे, तो कितना हो गया 32 और 44, तो 12 हो गया मार्जिन। तो 18 और 12 आ रहा है मार्जिन, मैक्सिमम पॉसिबल मार्जिन। तो ये दोनों केस, अच्छा ये तो दोनों ऑप्शन नहीं है, तो 18 और 12 तो ऑप्शन नहीं है। मतलब अब अपन को लेवल 1 की, अब इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, एक कैंपेन करेंगे लेवल 1 की और एक कैंपेन करेंगे लेवल 2 की, है ना। तो मान लेते हैं कि आर ने लेवल 2 की कैंपेन करी और आर ने, हाँ, तो आर ने अगर लेवल 2 की कैंपेन करी तो 2 + 1 3, 60% लोग वोट दिए। 60% लोग वोट दिए। अब क्या हुआ कि आर ने कैंपेन रन की और अटैक किया ए को, है ना। तो 20% हुए वोटेड फॉर, तो पहले कितने थे, तो 40 और 20 था, सॉरी 20 और 40 था। अब क्या हुआ, आर ने अटैक किया ए को, तो 20% हुए वोटेड फॉर आर विल वोट फॉर ए। तो 8 लोग जो हैं वो 28 चले जाएंगे, इसका 32 बचेगा। अब 5% वोट ही नहीं करेंगे, तो 2 लोग और वोट ही नहीं करेंगे, 30 और 28। यहाँ तो सिर्फ 2 का मार्जिन बच रहा है, ये भी नहीं। तो ए ने अटैक किया मान लेते हैं, तो अगर ए ने अटैक किया तो मतलब वही 20 और 40, हाँ, तो ए ने अटैक किया तो 10% हुआ, अदरवाइज वोटेड फॉर ए विल वोट फॉर आर, तो 2, यहाँ 18 बचे, यहाँ 42 बचे। एंड अनदर 10% हुए वोटेड फॉर ए विल नॉट वोट एट ऑल, यहाँ 16 बचे, यहाँ 42 बचे। 42 - 16, 12 - 6 6, 3 - 1 2, तो 26 आया। तो मतलब ये 26 एक वाजिब आंसर हो सकता है। इसके अलावा एक आंसर और है कि ये 40 हो और ये 20 हो, ये 40 हो और ये 20 हो, ए 40 हो और आर 20 हो। अब ऊपर वाला केस लगाओ कि नहीं, अब, हाँ, नहीं, अब नीचे वाला केस लगाओ कि आर ने अटैक किया ए पे, तो क्या होगा, 22 होगा, तो भाई वोट फॉर आर, वोट फॉर ए, तो 2 कर, तो 4 लोग, तो 44 और ये 16 आ जाएगा। और अनदर 5% विल नॉट वोट एट ऑल, तो ए, तो 15 और 44 आ जाएगा। तो ये और अच्छे मार्जिन है कि 3 2 और 14 और 9, 29, 29 आ गया। तो ये आंसर हो सकता है, 29 आंसर है, 29 आंसर, पूरा सेट सॉल्व हो गया। अगर ये वाले क्वेश्चन को अपन को हटा भी नहीं, कि नहीं भी बना, तो भी 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन में से कितना बन रहा है, इतने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये वाले क्वेश्चन बन जाएगा, ये वाला इजी है, ये वाला इजी है, ये कौन सा है, ये वाला अभी सॉल्व नहीं किया है, और ये वाला इजी है, और ये स्टार्स वाला इजी है,
तो इसी हिसाब से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल लिखिए नीचे।